Mr. Gagan Ghai has more than 20 years of experience, in this industry. He is a financial and valuation expert, and he has 20 plus experience in this industry. He is involved in various activities like analyzing, scaling, building sustainable businesses, operations, and helping others, helping the new startups, because we can see that through his support to the startup ecosystem, like at IIT Kharagpur, at Atal Innovation Centers, and he's been doing this from a long time. So I welcome you, sir, for today's session, and I give this session to you to take further and guide our students more on the topic. Thank you, Tanushree, and thank you, Shilpa, for having me here. Although I was scheduled for some different topic for yesterday, for 5th of session, but somehow I landed up to my favorite topic, which I always love to discuss, because it's a kind of a doctor-patient relationship, wherein you might be having so much of Google helping you out in various things and questions and answers, but still the right medicine at the right time, at the right strength, you get personal advice from your doctor only. So something related to that is today's sessions, friends, wherein we will, and we have been doing it from some donkey years now, helping people, helping teams, helping business owners, helping startups, SMEs, to clear their path and to brainstorm with them as a sounding board, helping them, assisting them to create a better tomorrow for themselves, depending upon their goal, objectives, and where they want to go from where they are today. So I'm presenting just few of my thoughts around it. We have been given two important discussion points here within the mentors is why do we need anybody, right, from outside? Why do we need anybody to look upon to? Why do we need to search for such a person? Why do we have to depend upon such a person outside your inner core co-founding team, etc., etc.? So we'll try to help today to make understand things around it, and then once we are understood the need, the requirement, then we understand how and where we could get these kind of experts on board and take it from there, and a little bit about us also, wherein we can help you guys one-on-one beyond this intro session, I must say. And so I just have a request. Yeah. Yes, your presentation is visible. So just a request. हमारे काफी सारे students are from Haryana. Almost all the students are from Haryana, and they would like your session to be more in Hindi and English. Okay, ji. I will try to be using English as the language. Right. It would be really Hindi fun. Thank you. थोड़ा English साथ में, but yes. Okay. Corporate world में हमें आदत नहीं रहती, छूट जाती है हिंदी यूज करने की. As you are on the webinar, you start talking in the usual English language, but okay. Thanks Tanu for reminding me. कोशिश करेंगे कि जितना हम open platform में या open तरीके से बात कर सकें. So okay. Anu has explained, आपको बताया होगा हमारे बारे में थोड़ा सा brief, but it is my duty to make you understand our experience थोड़ा सा विस्तार में. We are part of Crest Innovation Foundation, friends, जो कि एक non for profit Section 8 कंपनी है, जहाँ पर हम experts 20 से 40 साल experience industry expert different domain से, जैसे मेरा एक domain है, ऐसी और भी मेरे partners हैं, सहयोगी हैं, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जिनका एक बैकग्राउंड है, तो वो मिल करके हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप को, उनको जो भी फैसिलिटेशन हो सके हमारे से
गाइड करना, पर्सनली एंगेज होना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चलना। सो अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो पहला लॉकडाउन हुआ था 1 साल पहले ठीक, उस दरमियान हम लोग करीबन 5,000 वांटिंग स्टार्टअप्स, आई मीन एस्पायरिंग स्टार्टअप्स के पास और बिजनेसमैन के पास पहुंचे, जहां उनकी प्रॉब्लम समझी, उनको दिशा दिखाने की कोशिश करी और गाइड किया कि कैसे वो अपना आइडिया चुन सकते हैं या उस आइडिया पे चल सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि कैसे कहाँ पर कैसे किसी को गाइड किया जा सके, ताकि वो कल बेटर जल्दी उस रास्ते में चल के अपनी मंजिल को प्राप्त करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम ऑलरेडी बहुत जगह नेशनल इंस्टीट्यूशंस पे ऑलरेडी ऑन बोर्डेड हैं एज देयर मेंटर्स, इंक्लूडिंग प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT IIM, and we are very active on government platform also. हम लोग एडवाइजर्स, मॉनिटरिंग एक्सपर्ट्स एंड रिव्यूइंग पैनल में हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मिनिस्ट्री ऑफ IT के, नीति आयोग के, स्टार्टअप इंडिया के, और भी बहुत सारी ऐसी बॉडीज एंड प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम जा करके स्टार्टअप के साथ उनको मेंटर करते हैं, उनकी गोल बना करके उनके गोल के साथ, उनके उद्देश्य के साथ चलते हैं। किसी का 6 महीने गोल होता है, किसी का 1 साल का, और हम रिजल्ट ओरिएंटेड, आउटपुट ओरिएंटेड उनके साथ प्रोग्रेस करते हैं और एक प्रोग्रेस कार्ड बनता है उनका, विच इज मॉनिटर्ड एंड इवन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द मिनिस्ट्रीज। सो जो भी हम काम करते हैं बहुत ही फ्रेमवर्क के साथ करते हैं, जिससे कि किसी को भी कोई शंका ना रहे कि यार हमें क्या मिलेगा या हम क्या सीख पा रहे हैं या हम क्या कर पा रहे हैं, राइट। सो सारा कुछ एक माइलस्टोन ड्रिवन होता है फ्रेंड्स, जहाँ से आप शुरू होते हैं और जहाँ आपको जाना होता है। सो ये हमारी प्रैक्टिस है और ये हमारा सोच भी है और प्रिंसिपल भी, और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ एक बड़ी अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस से जुड़ी होती है। सर जस्ट अ सेकंड, आपकी जो स्लाइड्स हैं वो मूव नहीं कर रही है। आई थिंक आप थर्ड स्लाइड पे आ गए हैं, बट हमारी स्क्रीन पे इट्स द फर्स्ट स्लाइड ओनली। इट आई होप इट्स विद दिस अदर्स आल्सो। आई विल ट्राई टू शेयर डिफरेंटली मैम। यस, मैं एंटायर स्क्रीन शेयर करता हूँ मैम, तो शायद बात बन जाए। राइट राइट। अब आप बताइएगा विजिबल है सेकंड शीट? Yes, sir, about us, yes. Very good. Now we are, yes, Thanks yes. for reminding me. Yeah. Right. Great. मैं ये प्रेजेंटेशन धनुश्री आपके रेफरेंस के लिए मैं भेज दूंगा, whoever wants, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। Right. So we were discussing about uncertainty, friends. जिंदगी बहुत ही अनसर्टेन है एंड we have to take different angles, उसको पहचानने की, उसको जज करने की, उसको एसेस करने की, राइट, एंड take a appropriate action therefrom to adjust ourselves. कोई चीज रुक नहीं जाती है अगर हम उसको ये सोचें कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो, राइट। So that is the saying, things don't stop changing because just we decide to stand still, right? चीजें तो मूव करती रहेंगी अपने हिसाब से, but we have to see where we need to go and how we need to progress towards it. वो हमारा एक उद्देश्य होता है। With this forethought, क्योंकि हम सारे मिलके ही एक बिजनेस बनाने की, बिजनेस खड़ा करने की और उसको चलाने की अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। काफी लोगों ने बिजनेस से डेवलप भी किया है और काफी लोगों के पास कस्टमर भी है, जो मुझे बताया गया है ब्रीफिंग अबाउट यू ऑल, एंड आई रियली अप्रिशिएट अगर हम आपकी किसी भी तरह से सहायता कर पाए इसको बढ़ाने में, बेहतर बनाने में यहाँ से। सो फ्रेंड्स, जिंदगी बहुत ही रिस्की है, दैट इज द बेसिक नेचर, ठीक है ना। बट हैविंग सेड सो, द बिगेस्ट रिस्क इज रिस्क ऑफ डूइंग नथिंग। अगर आप खाली एक जगह बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा रिस्क है। जब तक आप कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे, उस रिस्क को एसेस नहीं करेंगे, उस रिस्क को पहचानेंगे नहीं, उस रिस्क को आप मैनेज नहीं करेंगे और मैनेज करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको रिवॉर्ड्स की प्राप्ति या फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। दैट इज इनहेरेंट नेचर ऑफ लॉ, ठीक है जी। तो अगर हम इस लॉ को समझते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, स्पष्ट है,
लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं सिंपल चीज़ों को ही अपने ज़िंदगी में अडॉप्ट करना. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर फ्यू ऑफ दिस बेसिक प्रिंसिपल्स बिफोर स्टार्टिंग अहेड, क्योंकि ज़िंदगी की तरह फ्रेंड्स बिजनेस भी एक रिस्क है, राइट. सो जब भी आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक रिस्क को मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, ताकि मैं इतना रिस्क लेने के काबिल हूँ एंड इससे भी मुझे इतना रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड आना चाहिए, राइट. आपने बहुत बार सुना होगा कि जितना हाई रिस्क होता है उतना रिवॉर्ड हाई होता है, राइट. बट देन उसका मिसेस भी उतनी ही होती है. रिस्क का मतलब रिटर्न, और रिटर्न और रिस्क अपोजिट होते हैं एक दूसरे से चलने में. और बीच में एक लीवर होता है फ्रेंड्स, जो इसको मैनेज करता है रिस्क और रिवॉर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लीवर आपको सपोर्ट करे इन असेसिंग बोथ द साइड्स ऑफ लीवर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, ताकि आप प्रॉपर से बैलेंस करके आगे बढ़ पाए. कई बार आप देखते हैं कि कोई चीज़ आपको कम रिस्की लगती है, लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं उस पाथ पे, तो वो एक डिफरेंट डायमेंशन में और डिफरेंट गेम में पहुंच जाती है. तो और कोई आपके साथ खड़ा हो जो आपको बता पाए कि नहीं, अगर ऐसे आप चलेंगे तो यहाँ ऐसे है और वहां चलेंगे तो वहां वैसे. फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में आप अपने घर से निकलेंगे एंड यू विल स्टार्ट मूविंग टू सम आइडेंटिफाइड लोकेशन, राइट. मान लीजिए आपको गुड़गांव में ही सोना रोड से साइबर सिटी आना है, राइट. एक तरीका तो ये है कि आपको जो रास्ता पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड आप गाड़ी उठाए और निकल जाए, राइट. बट एक तरीका ये भी है कि मैं टाइम देखूं, शाम के 5 बज रहे हैं, किस रास्ते में ट्रैफिक होगा किस रास्ते में नहीं होगा, राइट. आप उठाते हैं, गूगल मैप खोलते हैं अपने फोन में, फिर देखते हैं कौन सा रास्ता बेस्ट है जिसमें मुझे कम टाइम लगेगा और मैं अपने उद्देश्य पे, अपनी डेस्टिनेशन में मैं पहुंच जाऊंगा. सो गूगल मैप का जो काम है वो हम करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए, कि आप कम टाइम में, कम समय में, सही हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें, अपने गोल्स को अचीव कर लें. बट आज मैं इस शीट पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा आप लोगों का. फ्रेंड्स, स्टार्टअप या बिजनेस चलाना या शुरू करना कोई आज की नई बात नहीं है, सदियों से होता आया है और हो रहा है. स्टार्टअप का चलने का और चलाने का तरीका थोड़ा सा फर्क है देन यूजुअल बिजनेस, इसीलिए उसको हम स्टार्टअप को क्लासिफाई करते हैं, ना कि हम ओल्ड बिजनेसेस. मार्केट में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस या एनालिसिस की गई है कि कुछ सालों में जो स्टार्टअप बन के फंड लेके एक लेवल तक बढ़ के क्यों फेल हो गए, राइट. उन सबका अगर आप विश्लेषण करें तो ये कुछ आपके पास डेटा आता है जो कि बहुत ही महत्व है उस डेटा का फॉर ए फ्रेश स्टार्टअप, या जो आप पहली बार बिजनेस चलाना चाहते हैं. ये समझना कि इतने सारे लोग किस कारणवश फेल हुए हैं, या क्या वो वजह थी जिसके कारण वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाए या अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए. तो अगर आप देखेंगे पहला चैलेंज या पहला रीजन फॉर फेलियर, विच इज ऑलमोस्ट 42% ऑफ द टाइम्स, वो ये कहता है कि देयर इज नो मार्केट नीड. इसका क्या मतलब है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, राइट. उस प्रोडक्ट को बनाया तो उस प्रोडक्ट की मार्केट में नीड ही नहीं है, कस्टमर लेने वाला ही नहीं है उस प्राइस पे या उस मॉडल को या उस प्रोडक्ट को. आपने कुछ सोच के बनाया था कि यार ये चलेगा, सब होगा, लेकिन वो चला ही नहीं. अब कारण कुछ भी हो सकता है, या मार्केट नहीं रही, या जो कॉम्पिटिटर खड़ा था उसने ऑलरेडी कुछ चेंज किया अपने प्लेटफॉर्म में और वो खा गया सारे कस्टमर्स, आपको मिले नहीं कोई कस्टमर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात. आप जिस प्रोडक्ट को, जिस बिजनेस को पूरी अपनी लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो प्रोडक्ट एक ऐसा होना चाहिए जिसको आप दूर तक लेके जा सकें. तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या जिसके पीछे टाइम लगा रहे हैं उसकी मार्केट में नीड हो, पेइंग कस्टमर हो, और कस्टमर का पेन राइट तरीके से एड्रेस करता हो, और वो आपका प्रोडक्ट लेने में हिचकिचाए ना, उसको तकलीफ ना हो, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े, राइट. पहला इशू ये था. दूसरा मेजर इशू ये है फ्रेंड्स की कैश फ्लो प्रॉब्लम हो जाती है. कैश फ्लो प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके खर्चे भी होते हैं और उसके आपको पैसे आते भी हैं, सेल्स भी करते हैं आप, राइट. तो सेल्स और खर्चे के जो बीच में होता है फ्रेंड्स वो है कैश फ्लो, कि किस तारीख को मेरा फंड आएगा और किस तारीख को मुझे फंड की जरूरत है. तो वो कैश मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होने के कारण, राइट, बिजनेस अटक जाता है.
या आप पैसा दे नहीं पाते हैं या आप पैसा ले नहीं पाते हैं, तो बीच में आप खिचड़ी बच जाती है, तो आप चला नहीं पाते हैं उस बिजनेस को तरीके से टाइमली। सो कैश फ्लो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा मेजर कारण है फ्रेंड्स, नॉट द राइट टीम। इसका क्या मतलब है? आप फाउंडर हैं, मान लीजिए हम दो फाउंडर हैं, एक आप है एक मैं हूं। मेरी अपनी स्किल सेट होंगी, आपकी अपनी स्किल सेट होंगी। हमें जो प्रोडक्ट को बनाना है फ्रेंड्स, उसको चलाने के लिए कौन कौन सी स्किल सेट्स की आवश्यकता है, उसके अनुसार ही हम राइट ए टीम बनाते हैं। राइट, एक ऑपरेशन संभालेगा, एक मार्केटिंग संभालेगा, एक बिजनेस की बीडी करेगा, या एक सप्लाई चेन देखेगा, या टेक्नोलॉजी संभालेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो एक राइट टीम होना, को फाउंडेड टीम होना बहुत ही अनिवार्य है। लिस्ट बहुत लंबी है, बट मैं सारे लिस्ट पे टाइम अभी स्पेंड नहीं करूंगा। दिस इज फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। प्लीज आप इस शीट का प्रिंट आउट निकाल कर रखें फ्रेंड्स अपने पास, और रोज सुबह उठ के इसको एक बार देख लें, बिकॉज मैं नहीं चाहता दिल से कि आप कोई भी ऐसी गलती करें जो किसी और ने पहले करी हुई है। राइट, वाई? बिकॉज हाउ वी विल क्विकली टर्न अराउंड। जब हम किसी दूसरों की मिस्टेक से सीखेंगे तभी तो हम अपना टाइम बचाएंगे। राइट, अगर हम भी वही गलती करने लग गए तो फिर फायदा नहीं है किसी दूसरे की गलती करने का। इसको आप प्रिंट आउट लेके अपने सामने लगाएं और रोज देखें सुबह कि आपने ये गलतियां नहीं करनी है अपने बिजनेस के साथ, अगर आप उसको तरीके से ढंग से चलाना चाहते हैं। ये कोट है फ्रेंड्स, बहुत मेरा फेवरेट है। आप भी शायद इस क्लास के बाद, डिस्कशन के बाद याद करेंगे। लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स मेक्स यू स्मार्ट। आप अपने आप गलती करें और उसको रिपीट ना करें तो आपको समझदार बोला जाता है। राइट, लेकिन लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स मेक्स यू जीनियस। राइट, मैंने गलती करी है और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये ना करें, और आप उससे सीख रहे हैं, तो आप जीनियस बन जाते हैं। राइट, तो आपको समझदारी कैटेगरी में नहीं आना फ्रेंड्स, आपको जीनियस की कैटेगरी में आना। और आज का डिस्कशन इसी के इर्द गिर्द है, हाउ टू बी जीनियस फ्रॉम स्मार्ट। आप स्मार्ट सब लोग हैं, तभी आपने अपना एक आइडिया निकाला है, आपने बिजनेस खड़ा किया है, आप इतने दूर तक आए हैं और लोगों से समझ रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और इससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो टुडेज जर्नी इज फ्रॉम हाउ टू बी जीनियस फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, एक तरह से। राइट, सो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिसका दायित्व हमें दिया गया था आज की बताने के लिए, हमें मेंटर्स क्यों चाहिए, हमें गाइड्स, फैसिलिटेटर्स क्यों चाहिए होते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस को और अच्छा बनाने के लिए। राइट, वो कौन से कारण हैं, 2, 4, 6, 8, जिनकी वजह से वी नीड पीपल अराउंड अस, दिस टाइप ऑफ पीपल अराउंड अस। थोड़ा सा हम हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से उस पर डिस्कस करेंगे, एंड क्विकली we will try to take your challenges, your questions around it, and the way we can help you out, is all open. Yep. Friends, हर बंदा ग्रोथ के पीछे भागता है, एंड ग्रोथ का पैमाना डिफरेंट होता है हर बिजनेस के लिए। बट क्या होता है कि कुछ ऐसी हम गलती कर बैठते हैं, जो मैंने अभी आपको कुछ स्लाइड्स में दिखाई थी, जो कि ऑलरेडी किसी ने करी होती है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। बट हम अपने जोश में, भागम भाग में, या किसी के साथ मिल करके, राइट, हम कुछ बनाते हैं, हम कुछ चलते हैं, हम कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो जब हम वो जोश में होश खो बैठते हैं तो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। सो 70% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल बिकॉज ऑफ प्री मैच्योर स्किलिंग। राइट, बिकॉज आपका प्रोडक्ट पूर्ण रूप से रेडी नहीं होता है और आप उसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। ये कुछ एक कारण है, ये एक ही मतलब यही कारण नहीं है, बट ये सब कारणों में से एक कारण है। अगर आप मेंटर्स अपने साथ रखें और उनकी सलाह समय समय पर, आपको जब लगता है कि मैं फंस गया हूँ कहीं पर, या मुझे किसी वक्त किसी का सेकंड ओपिनियन चाहिए कि यार जो मैं कर रही हूँ वो मैं ठीक कर रही हूँ, यू कैन जस्ट टेक अ सेकंड ओपिनियन। सो एंटरप्रेन्योर्स स्टे लॉन्गर इन बिजनेस विद मेंटर्स। राइट, तो आप बिजनेस में ज्यादा समय तक रह सकते हैं। एक बहुत बड़ा एक बेसिक कारण है ये कि आपको एक साउंडिंग बोर्ड की क्यों आवश्यकता है।
जिससे आप कभी भी कुछ भी फंसते कहीं पर तो आप एक सलाह ले सकते हैं। एक बार ये भी देखा गया फ्रेंड्स, जो मेंटर्ड स्टार्टअप्स होती हैं उनकी ग्रोथ रेट काफी फास्ट होती है और उनकी स्केलिंग और उनकी प्रोडक्ट स्केलिंग की बात करें या बिजनेस स्केलिंग की, वो काफी फास्ट रहती है। तो जो सक्सेस होता है बिजनेस का वो काफी एम्पलीफाइड हो जाता है, काफी उसका पैमाना बढ़ जाता है। मेंटर्स कई बार क्या करते हैं कि आपके बिजनेस में डिफरेंट मोनेटाइजेशन एंगल लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप सेम बिजनेस को डिफरेंट तरीके से कैच कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस बनाया जिसमें आपने कोई एक रेवेन्यू ड्राइवर निकाला है, राइट, बट मेंटर्स विद एक्सपीरियंस एंड ग्राउंड वो उसी प्लेटफॉर्म को या उसी बिजनेस वर्टिकल में डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड करने की कोशिश करेंगे ताकि वो 1x की जगह 3x 5x 10x हो जाए। एंड दैट इज हाउ आप अपने बिजनेस को ज्यादा तरीके से, तेजी से और ज्यादा डीपली समझ के उसको बढ़ा सकते हैं। मोस्टली ये देखा गया फ्रेंड्स, पीपल से दैट हमने तो कोई आईपीआर डेवलप कर लिया है, वही हमारी शक्ति है, वही हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसको लेकर हम आगे जाएंगे अपने आइडिया को। बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है और बहुत ही बढ़िया सोच है। बट फ्रेंड्स, सोच जितनी भी बढ़िया हो, 1% दामदार उसका सही एग्जीक्यूशन नहीं जाता है। आपने देखा होगा आज 10 सालों में कितने स्टार्टअप बने बड़े हैं और उनमें से भी जो टॉप 5-10 हैं उनमें भी कितनी फाइट चलती है, उनमें भी कितना कंसोलिडेशन होता है, राइट। सेक्टर में आपके कि बहुत कंसोलिडेशन होता है और एक लीडिंग स्टार्टअप दूसरे लीडिंग स्टार्टअप से अपने एग्जीक्यूशन में ही डिफरेंट होता है। आइडिया, सोच, सेक्टर, टारगेट ऑडियंस सबकी सिमिलर होती है, बट द वे दे एग्जीक्यूट, द वे दे अडॉप्ट बिजनेस मॉडल, वो सब कुछ फर्क ला देता है। तो मेंटर्स ये आपको फैसिलिटेट करते हैं कि किस तरह से आप डिफरेंटली सोच सकते हैं, डिफरेंटली प्लान बना सकते हैं और हाउ टू नेविगेट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंपटीशन। बिकॉज कंपटीशन को तो देख के चलेंगे ना कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या डिफरेंट है हमारे में। कहा गया है ये बहुत हर जगह, एक्सपीरियंस डज मैटर एंड इट इज इररिप्लेसेबल एसेट कि आसानी से मिलता नहीं है और आप बाजार में खरीद भी नहीं सकते। मेंटरशिप आपको गारंटी करता है दैट यू विल गेट एन एक्सपीरियंस्ड माइंड, एन एक्सपीरियंस्ड सोल विद यू टू हेल्प यू आउट इन अचीविंग योर गोल्स। तो वो एक एक्सपीरियंस जो है, जो किसी पर्सन का इन दैट वर्टिकल, इन दैट फील्ड, वो बहुत मायने रखता है, बहुत काम आता है। उसको आप जरूर लें और ताकि आप आगे अपनी बिजनेस को, ये स्टार्टअप को बेहतर रूप से और ढंग से आप चला पाए। मेंटर का बैकग्राउंड होता है, वो एक इंडस्ट्री में एक लेवल पे होता है, उनका अपना एक नेटवर्क होता है फ्रेंड्स, जहाँ से वो आते हैं। तो कई बार आपको उस नेटवर्क टैपिंग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जहाँ आप खड़े हैं और जहाँ वो खड़े हैं उन दोनों में बहुत फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी क्लाइंट से बात करनी है, राइट, कि वो मेरा क्लाइंट हो सकता है, बट आपको समझ नहीं आ रहा कैसे पहुंचे। बट विद मेंटर्स वो एक कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो वो आपके लिए खुद ही चल के आ जाएंगे, राइट। सो एक नेटवर्क की जो पावर है फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ी होती है और विद देयर एक्सपीरियंस कनेक्ट दे विल, दे कैन ब्रिंग नेटवर्क टू यू। उसका कोई मूल्य नहीं होता है, बट जब वो चीज हो जाती है तब आपको रियलाइज होता है कि अगर ये ऐसे ना होती तो हम शायद वहां ना होते, राइट। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं, जिसको शायद क्वांटिफाई करना, मेजर करना, उसको मुश्किल है। कई बार ये सब चीजें अमूल्य हो जाती हैं, राइट। जब आप काम करते हैं और जब आप सीखते हैं और वो उसको अचीव करते हैं, तो हर जगह आपको बहुत क्रिटिकल लोगों को रीच करना पड़ता है। तो वो रीच आपकी बहुत आसान हो जाती है और बहुत सिंपल हो जाती है जब आपको इन सीनियर्स का साथ मिलता है और खास मिलता है। तो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग मैं समझता हूँ, जिससे कि आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो सकती है और आपकी रीच बहुत डिफरेंट लेवल तक जा सकती है। ये भी बहुत क्रिटिकल बात है फ्रेंड्स। आप एक करते हैं, उस आइडिया को बिजनेस में convert करने की कोशिश करते हैं, राइट।
हम लोग बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते हैं फ्रेंड, जहां आइडिया टू बिजनेस वैलिडेशन और बिजनेस वैलिडेशन टू मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से बनाते हैं और फिर वहां से वो गो टू मार्केट लेके जाते हैं इस प्रोडक्ट को। वैलिडेशन ऑफ आइडिया कस्टमर करता है, राइट, लेकिन कोई भी मार्केट एनालिसिस करें, उसका जो फीडबैक आता है और उस फीडबैक को किस तरह से आपने एब्जॉर्व करना है, किस तरह को कस्टमर बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट देन व्हेन यू ब्रेनस्टॉर्म दिस थिंग्स, राइट, जब आप अपने मेंटर का दिमाग कान पिक करते हैं, राइट, वो समझ के आपके साथ उसको डाइवर्स्ट करके एक बढ़िया सा एक सॉल्यूशन बना करके आपके बिजनेस को वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम सही सिग्नल को गलत मान लेते हैं, हम गलत सिग्नल को भी सही मान लेते हैं जो बाजार से आते हैं। उसको कैसे हम फिल्टर करें, कैसे हम सही दिशा पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप तभी रियलाइज करते हैं जब आप एक गलत सिग्नल पे अपनी वैलिडेशन कर चुकते हैं और कर चुकने के बाद आप आगे जाते हैं और आगे बढ़े आपको पता लगता है कि नहीं, जो मैंने सिग्नल पकड़ा था वो अप्रोप्रिएट राइट सिग्नल नहीं था, राइट। फिर आपको टाइम वेस्ट लगता है, एफर्ट वेस्ट लगता है, पैसा वेस्ट लगता है और कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है, राइट। सो टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, keep with you right mentors to help you out in even validating your ideas। मैं आइडिया बना रहा हूँ, क्या वो आइडिया मेरे में सही तरीके से कर रहा है या कुछ में मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। नाउ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स, समटाइम्स यू आर वेरी वेरी अलोन। आपको अकेले ही बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, छोटी से लेकर बड़ी तक, राइट। आपको संभालनी पड़ती है, उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, तो इसमें इमोशनल और क्रूशियल डिसीजंस का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मेंटर्स एक ऐसा आपके पास बैकअप है या सपोर्ट है जहां वो आपके इन इमोशंस को समझ के और संभाल के इस्तेमाल करने की राय देंगे और कहीं भी आप फंसेंगे वो आपको राइट एडवाइस दे करके सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इमोशनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लाइवली क्रिएचर्स हैं और इमोशन होना हमारे स्वाभाविक है। स्टार्टअप चलाना कोई आसान काम नहीं है। सब बोलते हैं बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छी चीज है, बट प्रेशर्स, टेंशंस, चैलेंजेस बहुत होते हैं। आप रोज मरते हैं और उसी के साथ आप जीते हैं और आपको आगे बढ़ना होता है। दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए खुद को भी हाई रखना बहुत जरूरी होता है। सो किसी भी वक्त कोई भी स्टार्टअप फाउंडर, को फाउंडर, टीम डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, हो सकती हैं, राइट। सो मेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसा ना होने दें और वो उनके अंदर एक जो गोल बैठे हैं लेकर के या उनके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो गोल का सहारा दें और शक्ति से और स्फूर्ति से हम उस गोल की तरफ बढ़े। स्मॉल ऊंच नीच तो हर जगह आती हैं। आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम्स रही होंगी, वो तब आपका ऑब्जेक्टिव था एग्जाम पास करना, बट विद राइट फ्रेंड्स एंड राइट मेंटर्स एंड राइट टीचर्स आप अभी तक क्लियर करते आए हैं और यहाँ तक भी पहुंच गए हैं, राइट। सिमिलरली बिजनेस भी एक तरह का एक चैलेंज है जो आप मेंटर्स के साथ बहुत बहुत बड़े तरीके से आप उसको पार कर सकते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। कुछ ये पॉइंटर्स थे जो हमें लगता है कि बहुत क्रिटिकल है, जो एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के जिंदगी में रोजमर्रा देखे जाते हैं और आते हैं, और जहाँ पर अच्छे से समझ बूझ के साथ आपकी हेल्प करते हैं। तो पीपल, माय ओनली सजेशन एंड रिक्वेस्ट इज कि आप अपने आप को सराउंड कीजिए सही मेंटर से और सही टीम क्रिएट करने की कोशिश कीजिए विद राइट कॉम्प्लीमेंट्री स्किल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसमें किन किन चीज़ों की मुझे जरूरत है, राइट, टू फुलफिल द कस्टमर, वो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं घर बैठा हूँ तो मेरे घर में 4 भाई बहन है तो उनको चारों को लेकर मैंने कंपनी बना दी, या मैं स्कूल में पढ़ता हूँ तो 2 बजे अच्छा तू भी आ जा, हम चारों मस्ती करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बहुत ध्यान से एक दूसरे के बारे में पता करके आकांक्षाएं, पैशन, गोल्स हर एक मेंबर के उतने ही डीप, उतने ही स्ट्रांग होने चाहिए उस उद्देश्य को लेकर जितने कि आपके हैं। कई लोग बोलते हैं जी हमारे को हमारे जैसा कोई बंदा मिला ही नहीं या मिलता नहीं। वो ठीक भी है, गलत भी है। ठीक इसलिए कि आप अपने आप जैसा बंदा ना ढूंढें,
बट आप ये ढूंढने की जो सोच आपने रखी है, जो सोच आपने बनाई है, उस पर दिन लगाने के लिए, उस पर टाइम लगाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको और लोग विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, खुद आपको उसकी करनी है। आपको अपना क्लोन नहीं ढूंढना है, बट आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए, टाइम देने के लिए पैशनेट लोग ढूंढने हैं, जो दिल दिमाग से काम करें आपके लिए, दिन रात काम करें आपके लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, राइट? ताकि आप कभी फेल ना हो, और अगर फेल कहीं किसी जगह हो भी तो उस चीज को मॉड्यूलेट करके, शिफ्ट करके आप अपने आप को रिलॉन्च कर लें, राइट? एंड एक्सेलरेट कर लें वहां से। तो ये बहुत जरूरी है, एक राइट मिश्रण का होना, राइट? आप खाना खाते हैं तो खाने में भी आपको हर प्रकार के पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ती है। तो सिमिलरली बिजनेस भी एक उसी तरह का एक प्लेटर है जहाँ पर हर चीज सही प्रपोर्शन में, सही मायने पे आवश्यकता होती है, और वो आपको लेके आनी पड़ेगी और आनी चाहिए टू क्रिएट ए सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर। बोलेंगे यार आपने जरूरत तो बता दी, अब ये बंदे मिलेंगे कहाँ आपको? एक तो यस, एक आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जो कि एक गवर्नमेंट नेटवर्क कनेक्टेड, डीपली एंगेज है, SACC, जहाँ पर हम सारे खड़े हैं आज। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाएगा, आप अपने आप को समझें, अपने रिक्वायरमेंट को समझें, और फिर उन मेंटर से आपको क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, उसके भी मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आपको हेल्प हो सके कि आप अपने लिए मेंटर कैसे उसमें से फिल्टर कर पाए अपने लिए, राइट? तो वो कुछ पॉइंट मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा। उसके बाद हम एक ओपन राउंड रख लेंगे डिस्कशन का, टू टेक अप योर एनी क्वेरीज ऑन योर बिजनेस। अच्छा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि कोई आपको एडवाइस दे रहा है किस चीज पे, तो ये जरूरी नहीं कि वो आपका मेंटर है या वो मेंटर क्वालिफाइड हो जाता है। एक ऑफ हैंड किसी भी चीज पे एडवाइस देना अलग बात है, और एक सोचे समझे तरीके से बेंचमार्क करके, थीमेटिकली, टाइम ड्रिवन, रिजल्ट ड्रिवन मेंटरिंग करना विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम कमिटमेंट एंड फोकस अटेंशन के साथ काम करना अलग चीज होती है। तो इसको आप जरा दिमाग में रखिएगा कि ऐसी उल्टी फुर्ती एडवाइस किसी से ले लेना एक अलग बात है, और एक मेंटरिंग लेना, राइट, थीमेटिकली ड्राइव करना अपने आप को, आपके साथ लग करके आपके गोल्स को अचीव करने के लिए बैक टू बैक, वो अलग बात होती है, राइट? फाइंडिंग मेंटर इज वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट, बट देन आई विल ट्राई टू मेक दैट प्रोसेस थोड़ा सिंपल आप लोगों के लिए। जो मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, शायद आप उसके करेंगे तो आपको एक बेहतर मेंटर आप अपने ढूंढ पाए और अपने टारगेट कस्टमर्स तक रीच करके अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। ये पॉइंट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी जरूरतों का पता होना चाहिए और आप कमिटेड होना चाहिए दोनों बातों को लेकर के, राइट? आपको मेंटर से क्या चाहिए पता होना चाहिए कि मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, क्या मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ मेंटर से। वो पॉइंट्स, वो गोल्स, वो ड्रीम्स पेन एंड पेपर में लिखी होनी चाहिए कि यहाँ इस जगह मुझे सर से या मैडम से हेल्प चाहिए, या मेरा ये रोड मैप ये रहा, हम ऐसे काम कर रहे हैं, यहाँ यहाँ पे मुझे डिफिकल्टी आ सकती है, राइट? उसके लिए मुझे शायद मेंटर चाहिए हो। सो आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे कि आप किस टाइप के लोगों के साथ सुनना चाहते हैं, या दूसरे लोगों को कैसे मेंटर मिल गए हैं, या हाउ कैन आई गेट द राइट आंसर्स टू माय राइट क्वेश्चंस, राइट? अल्टीमेटली क्या है, मेंटर्स जरूरी नहीं कि आपके ही सेम इंडस्ट्री के हों, वो सेक्टर एग्नोस्टिक हो सकते हैं, राइट? आप मान लीजिए रिटेल में काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि रिटेल का बंदा ही आपके लिए मेंटर हो सकता है खाली, उसका एक्सपोजर मल्टी लेवल भी हो सकता है, अक्रॉस इंडस्ट्री हो सकता है, राइट? सो ओपन योर माइंड अक्रॉस द पॉसिबिलिटीज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, अपने के लिए निकलना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन गेट दीज मेंटर्स। आप अपनी आस्क को बहुत तरीके से बनाइए, उसको क्राफ्ट कीजिए, और अपने रोड मैप को जहां आप चल पड़े हैं या चलना चाहते हैं आगे जाकर के, उसको साथ में रखिए। देखिए एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, वेयर डू यू फील द नीड, राइट, इन योर ड्रीम रन ऑफ बिजनेस। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है और मुद्दे का पॉइंट है जिसके बिना आपको आगे नहीं चलना चाहिए।
क्योंकि इसी की मैचिंग आगे जाके होगी। आपने उद्देश्य बना लिए हैं, बट उसको उद्देश्य पे चलने के लिए और राइट मेंटर को फाइंड करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, राइट, और आपको रिस्पॉन्सिबली एंगेज होना पड़ेगा एंड अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि यस, ऐसा नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक ही है, आपको कुछ पता ही नहीं है, राइट। सो आपको एक स्टूडेंट वाली फीलिंग अपने अंदर कहीं ना कहीं जागरूक रखनी है कि मुझे समझना भी है, मुझे दूसरे का पर्सपेक्टिव भी लेना है। जरूरी नहीं कि अगला सही हो हर जगह, बट देन आप जो बात कह रहे हैं, जो पूछना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसका भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो हर बात को कहने के दो तरीके होते हैं, समझने के दो तरीके होते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि यार आप शायद ठीक नहीं कर रहे हैं, तो मतलब आप गलत भी नहीं कर रहे हैं। सो यू नो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो उन सबको समझना और इन्वेस्ट करना टाइम मेंटर पे, ये भी आपका एक सक्सेस फैक्टर होता है स्टार्टअप को आगे जाने के लिए। आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, राइट। डोंट बी सेल्फिश, दैट्स द ब्लंट वर्ड, कि थोड़ा सा अपने सेल्फिशनेस से बाहर निकलिए, थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए, थोड़ा सा प्रोग्रेस कीजिए। मेंटर आपको हेल्प करता है आपको आगे प्रोग्रेस करवाने के लिए। तो बी वेरी वेरी फेथफुल एंड वेरी वेरी ओपन विद द मेंटर, ताकि जब भी वो आपकी मेंटरिंग करे तो आपका वो जो प्रोग्रेस कार्ड चेक करे आपके साथ मिल करके कि हम यार राइट दिशा पे हैं, जो हमने चलाया था। तो बी वेरी फेथफुल। अभी क्या हुआ है, फिलहाल केस में हम एक मिनिस्ट्री के पैनल में थे, वहाँ एक स्टूडेंट ने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट। वो कहते हैं कि हम ये फोन के साइज का हम ईसीजी डिवाइस बना रहे हैं, राइट। अब वो ईसीजी डिवाइस फोन के साइज का बना रहे हैं, बोल के फंडिंग ली और हम ऑन बोर्ड हुए मेंटर्स। 3 महीने बाद पता लगा कि जो वो ये प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने फंडिंग ली और हमें मेंटर अपॉइंट किया है, वो ये प्लेटफॉर्म की जगह जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं उनका वो इंटरप्रिटेशन डिवाइस बनाने लग गए, विच इज टोटली डिफरेंट। सरकार ने, गवर्नमेंट ने आपको चूज किया कि आप ये ऐसा कुछ नया डिवाइस बना पाए जो कि रूरल इंडिया को हेल्प करे। भाई घर में बैठे लोगों को अब हार्ट अटैक तो कॉमन है, तो वहां तक वो इतनी बड़ी ईसीजी मशीन पहुंचाना और उस ईसीजी मशीन को चलाने के लिए एक कैपेबल एक्सपर्ट पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बंदे ने बोला कि भाई हम एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिसको आप टच करके आप वहीं से सारा ईसीजी निकाल सकते हैं। तो अगर आप अपने साथ ही फेथफुल नहीं होंगे फ्रेंड्स, और मेंटर्स के साथ भी फेथफुल नहीं होंगे, तो काम नहीं हो पाएगा, राइट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंटर आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खिड़कियां खोल सकता है, शर्त यह है कि आप एकदम ओपनली फ्रैंकली उनके साथ चलें और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए आपस में। ऐसा नहीं है कि जो वो बात करे वो 100% सही होगी हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट ही इज काइंड ऑफ अ साउंडिंग बोर्ड। मैंने इसे साउंडिंग बोर्ड मतलब क्या होता है, आप कोई पर्सपेक्टिव लेते हैं किसी चीज का, या आप कोई डिस्कशन पॉइंट पे अटक जाते हैं, तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं कि सर मैडम मैं ये ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो क्या ये ठीक है, हमें ऐसा करना हमें बेटर है या हम वैसे करें, हमें प्रोडक्ट को ऐसे लॉन्च करना था बट क्या हम ऐसे भी सोच सकते हैं, क्या वो भी हमारी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। तो दीज आर द थिंग्स क्रिटिकल। जब आप आगे चलेंगे तो वो बहुत बहुत एंगल्स में आपको काम आएगा, और फिर आप रियलाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको डीपली हेल्प की गई या हेल्प प्रोवाइड की गई, और उससे आपकी स्टार्टअप में क्या क्या इम्पैक्ट आया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ये जो रिलेशनशिप होती है ना फ्रेंड्स, मेंटर मेंटी की, ये टू वे होती है, राइट। इट्स टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। सो अगर आप उसको रेसिप्रोकेट करेंगे वापस, तो अच्छा लगेगा। द टाइम दैट यू कैन ऐड वैल्यू टू द रिलेशनशिप ऑल्सो। देखो आप तो ग्रो करेंगे आस्ता आस्ता, आफ्टर लेवल आप एक अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, बट हमें देखना है कि आपस में हम मिलके लंबा चल सकें और एक दूसरे के लिए राइट अपॉर्चुनिटी भी बना सकें, ताकि मेंटर्स भी आपको प्रॉपरली एडवाइस देते हुए आगे बढ़ सके और उनका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट गार्ड रहे। और जहां तक हो सकता है फ्रेंड्स, इस रिलेशनशिप को लंबा लेके जाइए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है कि आप लॉन्ग रन के घोड़े होते हैं और आपको डिफरेंट लेवल पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटर से भी हेल्प ले सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं कि आप एक ही मेंटरशिप से आप चल रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको डिफरेंट मेंटर्स की जरूरत पड़े, आप डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाए।
बट इसका ये मतलब नहीं कि यू कैन नॉट फॉरगेट द अर्लियर मेंटर। सबसे रिलेशनशिप बना के रखें, क्योंकि किसी ना कहीं ना कहीं आपका डिफिकल्ट टाइम में आपका साथ दिया है, और उस साथ को रिलेशनशिप की तरह निभाएं, बिकॉज वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। वो भी एक बहुत डीपली आपकी सोच के साथ, आपके आइडिया के साथ और आपके ड्रीम के साथ जुड़े हैं आपके साथ बहुत शुरुआत से। उसको आप महत्व दीजिए और उस रिलेशनशिप को कल्टीवेट करके जिंदगी भर अपने साथ कैरी कीजिए। आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। ये मेरा मानना है और ये मैंने देखा हुआ है पास्ट में। फ्रेंड्स, मेंटर्स बहुत तरीके से आपको वैल्यूएट कर सकते हैं, राइट? आपको नई तरह की सोच पे जाने पे मजबूर कर सकते हैं, आपको नई तरह की सोच दे सकते हैं, राइट? आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं जब आप सोचें कोई चीज है जहाँ फंस जाते हैं, आप अटक जाते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, राइट? जैसे मैं कहीं बताया आपको कि वो एक साउंडिंग बोर्ड का काम करते हैं कि जब भी आप फंस जाते हैं तो आपको बोलने वाला, सुनने वाला चाहिए, तो आप बताना चाहते हैं अपनी बात, राइट? सो that is the person who hears you out, right, patiently, and then tries to give his perspective uh, and opinion on that situation, right? Because problem situation specific होती है, fact specific होती है, वो अपना रूप चेंज कर लेती है different situation में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मेंटर्स आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को उभार के लाते हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपको क्या टीम फॉर्मेशन करनी है या अपनी वीकनेसेस को कैसे ओवरकम करना है। कई बार हम अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अपने आप नहीं बता पाते हैं जब तक कि कोई सामने से हमारे साथ बैठ करके 1-to-1 ना करे। तो ये एक बहुत बहुत क्रिटिकल चीज है जो मेंटर्स तसल्ली से टाइम दे करके आपके अंदर की चीज को बाहर लेके आते हैं, और ये बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है मेंटरशिप का। स्ट्रेटजीज तो वो देंगे आपको बिजनेस ग्रो करने की, और आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है उनके साथ डिफरेंट एस्पेक्ट पे। कैसे वो सोचते हैं, हम कैसे सोच सकते हैं, वो क्या सोचते हैं अगर ऐसा कंडीशन आती तो, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? आपको विजिबिलिटी और रेवोल्यूशन भी मिलता है बिकॉज यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ देयर नेटवर्क्स, देयर यू नो सर्कम यू नो इकोसिस्टम, एंड आपका और टीम का ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है। सो ये मुझे लगता है कि दैट हैज बीन द एक्सपीरियंस एंड द फीडबैक जो हमें मिला है लोगों से इसके इर्द गिर्द, बिकॉज हमने बहुत सारे फैमिली बिजनेस को भी हेल्प किया है जहाँ की नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है काम पे। तो कई बार कहते हैं कि हमें जैसे पिताजी बिजनेस चला रहे हैं वैसे नहीं करना है, हमें अपने तरीके से बिजनेस चलाना है, या हम कुछ और करना चाहते हैं इस बिजनेस के साथ अपने लिए, पिताजी के साथ, समथिंग लाइक दैट। तो हमने उनको भी बहुत हेल्प करी है एंड वी हैव गॉट रियली सक्सेस विद देम उनको स्केल अप करने में अक्रॉस सेक्टर, राइट? सो इनको समझिएगा, सोचिएगा फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं रियलाइज करिएगा कि जो सारी चीज़ हमने बताई हैं ये विद एक्सपीरियंस आती हैं, और ये सिर्फ शीट्स में लिखी हुई चीज़ें नहीं है, बट ये लोगों का एक्चुअल फीडबैक है फॉर मेंटर्स। और आखिर में फ्रेंड्स, आप रिग्रेट करेंगे कि चांसेस जो आपने नहीं लिए, रिलेशनशिप जो आपने नहीं, कोई भी आप काम मत छोड़िए जिस पे आप बहुत देर हो जाए, उस काम को करते करते, उस काम को सोचते सोचते, उस रिलेशनशिप को बनाते बनाते। सो टेक नोट ऑफ टाइम, बिकॉज सबसे कम सबके पास टाइम ही है, राइट? मेंटर्स भी आपको अपना टाइम ही देते हैं, राइट? आपको भी अपना टाइम ही लगाना है उस डिसीजन को करने में। सो टाइम इज द मोमेंट फ्रेंड्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड डोंट लेट इट गो ऑफ वेरी इजीली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी मस्ट ऑलवेज फाइंड टाइम टू स्टॉप एंड थैंक दोज पीपल जिन्होंने आपकी जिंदगी में डिफरेंस लेके आए हैं, चाहे वो आपके टीचर रहे हों, फैसिलिटेटर रहे हों, चाहे वो आपके माता पिता रहे हों, चाहे वो आपके बड़े भाई बहन रहे हों, चाहे वो आपके और कोई फैसिलिटेटर रहे हों या हेल्प रहे हों। ऑलवेज ट्राई टू बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि आप जो हैं, जैसे हैं। बहुत लोगों का इसमें हाथ है आपको यहाँ तक बनाने में, पहुँचाने में, ताकि आप ये सब जो काम करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट, हैप्पी टू हेल्प यू ऑल फ्रेंड्स हियर, एंड कभी भी आप कहीं पर भी आप हमें आउटरीच कर सकते हैं, और हमेशा हम आपके लिए ओपन रहेंगे, and happy to help you in very very thematic and process oriented way. And now open to any kind of questions that you might have or you wanted to ask.
So thank you sir so much. The presentation was really good और काफी कुछ पता चला because हम बहुत stress करते हैं mentoring पे, and we try to connect our students to different mentors. बट जो आपने बताया कि इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि किस तरह से अगर कोई भी आपको एडवाइस देता है या आपने उस एडवाइस को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, एंड हाउ टू चूज द करेक्ट मेंटर फॉर अपने स्टार्टअप, अपने पर्पस के लिए. बिकॉज जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल ही दिया कि इट्स लाइक अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप. सो इट्स रियली ट्रू कि मतलब अगर हम जेनरिक एक मेडिसिन दे देंगे तो इट्स नॉट दैट इजी. सो आपको पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द पेशेंट, व्हाट्स द सिम्टम्स, व्हाट आर दी. सो उसके रिलेटेड आप उसको प्रिस्क्रिप्शन दो, उसको कोई एलर्जी तो नहीं है. सेम गोज विद द मेंटर मेंटी रिलेशनशिप इन अ स्टार्टअप. सो आज हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इस सेशन को सुन रहे थे, एंड मुझे लगता है कि उनके क्वेश्चंस जानना बहुत जरूरी है. तो आई ओपन दिस प्लेटफॉर्म नाउ टू प्लीज आस्क क्वेश्चंस. आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सर खुद एक मेंटर है, सर सैक के ऑनबोर्डेड मेंटर है, एंड सैक बाकी कई इंस्टीट्यूशंस के साथ भी जुड़े हुए हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट all the startups to please ask your questions one by one. Or you can use, you can unmute yourself. आप unmute कर सकते हो, आप chat box में लिख सकते हो. It's upon you. So मुझे okay, it's your. Ask me anything regarding your business venture. Yes, there are many business startups, young entrepreneurs sitting. So just one thing, जैसे आप आपका क्योंकि innovation is a key thing in your, so I was just thinking कि अगर हमें innovation की तरफ जाना है as a startup, as an entrepreneur, या just starting, so how can we take that step? मतलब क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसोर्सेज लग जाते हैं. सो व्हाट विल यू एडवाइज द किड्स? मैम, इसके जाने के बहुत सारे तरीके हैं. इनोवेशन का मतलब हम जो समझते हैं और जो इम्प्लीमेंट करते हैं टीम के साथ वो ये है, या तो वो इनोवेशन डिसरप्शन प्रोडक्ट लेवल पे हो, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्या डिफरेंट बना सकते हैं. एक तो वो एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका जो है वो बिजनेस मॉडल इनोवेशन है, कि जिस तरह से मैं बिजनेस कर रहा हूँ या जिस तरह से मैं अपना सामान बेच रहा हूँ, राइट, उसको हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं इन दी कस्टमर्स बेनिफिट. सो वो बेचने का तरीका मैं अगर डिफरेंट कर दूं तो कस्टमर बेनिफिट हो जाएगा, राइट. तो जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि बहुत बिजनेसेस बन गए हैं और बिखर गए हैं इन लास्ट 1 ईयर. इतना बिजनेस मॉडल इनोवेशन हुआ है लास्ट 1 ईयर में कि आपको हम बता नहीं सकते. वी हैव वर्कड वेरी क्लोजली विद लार्ज कॉर्पोरेट्स आल्सो, जो कि स्टार्टअप ढूंढ के पकड़ पकड़ के ला रहे थे कि सर हमें हेल्प कर दो, स्पेशली सप्लाई चेन. कि वो सप्लाई चेन अपना कॉर्पोरेट्स ने माल तो बना के रखा हुआ है, बट कस्टमर तक कैसे पहुंचे लॉकडाउन में, वहां पर उनको स्टार्टअप की हेल्प की जरूरत पड़ गई. तो ये देख के हमें बहुत खुशी हुई और गर्व महसूस हुआ कि आज जो स्टार्टअप है उसकी डिमांड अचानक से राइज हो गई. एंड वो एस्पेक्ट बड़ा ही अच्छा होता है कि जहाँ इंडस्ट्री भी रिकॉग्नाइज करती है कि यार अगर हम स्टार्टअप की तरह या स्टार्टअप के साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो शायद कल आने वाले टाइम में हम भी फंस सकते हैं. और ऐसे बहुत सारे वर्टिकलाइज्ड बिजनेस हाउसेज हैं, चाहे वो फैशन ले लें, चाहे वो सप्लाई चेन ले लें, चाहे वो एफएमसीजी ले लें, चाहे वो रिटेल ले लें. वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, और जो इस सोच से परे हो जाता है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है अपनी रेस में. तो उनको भी अपने आप को एक आगे रखना है. तो आगे रखने के लिए या तो उनको अपनी सोच स्टार्टअप की तरह बनानी पड़ेगी. अब क्योंकि वो इतने बड़े हो चुके हैं, वो अपनी सोच चेंज नहीं कर पाते, तो वो फिर स्टार्टअप के साथ दे एंटर इनटू सम काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट, एक ब्रीफ डिफरेंट लेवल ऑफ एंगेजमेंट कर लेते हैं ताकि वो उनके साथ सस्टेन कर पाए. सो इनोवेशन बहुत जरूरी है बिजनेस में चलाने के लिए. आप अपने आप को कैसे डिफरेंटली चला सकते हैं, कैसे डिफरेंटली प्लेस कर सकते हैं कस्टमर के पास, वो एक बहुत अच्छी सोच है. और हमारी टीम उसमें मैडम हेल्प करती है ऑन अ रेगुलर नोट. और अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत भी होती है तो वी हैव आवर इन हाउस टीम एंड रिसोर्सेज, जहां हम उनको
मिल करके वो चीज को R&D को हेल्प भी कर सकते हैं, और इसमें गवर्नमेंट भी काफी जगह कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है। बट वैलिड क्वेश्चन था बहुत ये इन इनोवेशन फ्रंट। Yes, sir. So, I think students really liked your session. काफी अच्छे comments आ रहे हैं, compliments आ रहे हैं. Students really like. तो एक question भी है गगन आहूजा की तरफ से कि if I just want to try out a product in market, whether people are responding to it or not. So, what's the best way to approach it? Because I'll definitely get some wrong signals how to tackle it. So, Gagan, I hope आप हो ये session इन्होंने में. हमारे प्रेजेंटेशन से उठाया जो मैं बात कर रहा था ना, रॉन्ग सिग्नल और राइट सिग्नल को। वेरी गुड पॉइंट। मैं चाहता था कोई बंदा ये पकड़े और पूछे। आप Yes, कोई अपना आइडिया लॉन्च करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपना ऑडियंस को फ्रीज करना कि मेरा ऑडियंस है कौन, राइट। एक बहुत ही प्रीमियर कॉलेज है साउथ दिल्ली का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके बच्चे हमारे पास आए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। वो कहते हैं सर हमने ना एक हेलमेट में एक ऐसा चीज लगाने की हम सोच रहे हैं कि जिससे ना एक्सीडेंट नहीं होंगे। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी सोच है। तो फिर क्या सोचा आपने? नहीं हम यहाँ ऐसा डिवाइस लगा देंगे, वहां पीछे ऐसा लगा देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो मैंने उनसे 2 ही क्वेश्चन पूछे। मैंने आपकी जो सोच है और जो आप डिवाइस बनाने की बात कर रहे हैं परफेक्ट है, आप लगाओगे कहाँ? सर हेलमेट में लगाएंगे। तो क्या आपने हेलमेट वाली कंपनी से जाके पूछा है? पहला, क्या वो रेडी है? दूसरा, क्या ये पॉसिबल है लगाना? जो आप डिवाइस कह रहे हैं क्या वो इतना होगा या इतना होगा? क्या वो हेलमेट की मैकेनिक्स में फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा? नंबर 3, जो हेलमेट को अप्रूवल चाहिए होते हैं मिनिस्ट्री से सेफ्टी की और सिक्योरिटी की, क्या वो पैरामीटर्स में आप बैठेंगे नहीं बैठेंगे? तो देखो हम इंडस्ट्री, तो ये बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी सोच आपके घर में ही ठीक है। अगर आप उस सोच को कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपकी सोच चेंज करनी पड़ेगी, उसके साथ मिलाना पड़ेगा। so, ये सारी चीजें हैं। सो व्हाट आई वांट टू से इज यू हैव टू डू करेक्ट सर्वे, टारगेट ऑडियंस का भी और इंटरमीडियरी प्रोडक्ट का भी। मान लीजिए टारगेट ऑडियंस तो कस्टमर हो गया आपका जो ड्राइव करता है 2 व्हीलर्स। इंटरमीडियरी मतलब जिस प्रोडक्ट में आप फिट करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के ओनर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रीज और लाइसेंसिंग का आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे ना, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और हर लेवल ऑफ स्टार्टअप के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी चीज सोचते हैं उसको अपने घर में मत रखिए कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। नो, बाद में झटका लगेगा, बर्दाश्त नहीं होगा। आज मेहनत कर लो, 2 हफ्ते, 2 महीने, 20 महीने डाल दो, इन्वेस्ट टाइम। आज के 2 महीने आपके बाद के 2 साल बचा देंगे। क्या लगता है बात? वेरी वैल्यूएबल सजेशन सर। ये बहुत मतलब क्योंकि हमारे पास भी एवरी डे वी फेस सो मेनी स्टूडेंट्स विद न्यू आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, बट यू नो दिस इज रियली नाइस कि उसका हमें काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, उसके साथ इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। सो इट्स रियली गुड। तो गगन, आई होप आपका क्वेश्चन वाज आंसर वाज सेटिस्फैक्टरी। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, हाँ जी गगन। Thank you, sir. Pleasure, yeah, pleasure. Anytime. Okay, so Vishesh has a question. Good afternoon, sir. Are you said, sir, just businesses are looking for startups. We are also into B2B, B2C, and for our business to flourish, we need to contact businesses which are big players in the manufacturing field. How and what are the weak points which we can hit so that think that they really need us? Okay. Vishesh, good question. Very, very broad question, but let me try to answer it best तरीके से। देखो, ये भी एक डिफरेंट प्रकार की ना मैच मेकिंग होती है विशेष। आप जो आपको लगता है गैप हो और इंडस्ट्री में जो गैप है वो मैच करने चाहिए। अगर वो मैच हो जाते हैं तो फिर देयर इज नो एंड टू इट, राइट। तो इतने हमने स्टार्टअप देखे हैं जिन्होंने सोचा है कि ये गैप है और इंडस्ट्री अगर जस्टिफाई कर देती है कि यही गैप है तो फिर तो बढ़िया हो जाता ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिस सिट ऑन में गवर्नमेंट पैनल रेगुलरली, हमारी हर वीक पैनल्स होते हैं, कल भी है 10 से 12 का पैनल है मिनिस्ट्री का। वहाँ बहुत सारे स्टार्टअप आते हैं अपने पिक्चर्स लेकर के। वो क्या बोलते हैं कि सर हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, बहुत बढ़िया है,
सर किसी ने नहीं बनाया होगा आज तक। हमारा वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि आपने रिसर्च नहीं करी। भाई इस तरह के काले नीले हरे सफेद प्रोडक्ट तो मेरे पास ही आई हुई है, पिछले मेरे मेल में पड़ी हुई है, और अगर आप ये दावा कर रही हो कि ये जो मैंने बनाया है ये किसी ने नहीं बनाया, तो आप वहीं फेल हो गए। मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि जो हमें लगता है कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है वो कई बार प्रॉब्लम होती ही नहीं है, या जो हम सॉल्यूशन सोच रहे हैं वो सॉल्यूशन नहीं होता, कुछ और होता है। तो अगेन आपको उसके लिए मार्केट सर्वे में इंडल्ज होना ही पड़ेगा। जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं, मान लो आप रिटेल सेक्टर की बात कर रहे हो, अगर आपके पास 50 रिटेलर का डेटा नहीं है या 100 रिटेलर से आपने बात नहीं की है, तो प्लीज आप अपने आइडिया को पहले ऑल्टर कर लें, अडॉप्ट कर लें कि क्या सोच कहाँ तक जाती है। अगर आपको याद होगा लास्ट 5-8 सालों में बहुत लोग निकले हैं जो कि फिजिकल स्टोर्स मॉल में हैं या बाहर कहीं हैं, उनको उन्होंने डिजिटाइज करने की बात करी है। और एक नहीं, हमारे पास कई दर्जनों लोग आए हैं जो बोलते हैं कि हम ये डिफरेंट बना रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, कर सब वही रहे होते हैं। तो पॉइंट ये है कि पेन एरिया था, और पेन एरिया को दूर करने वाले भी बतेरे लोग थे, क्योंकि सब अपने घर में सोच रहे थे कि हम चेंज कर रहे हैं। और आज की तारीख में 1 दर्जन सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं जो रीजनली लोकली हेल्प कर रहे हैं। सो माय आंसर इज प्लीज मूव अहेड, टॉक टू योर टारगेट ऑडियंस, डू देयर सर्वेज थीमेटिकली। जो आपको क्वेश्चंस लगते हैं कि आप चैलेंज हैं, वो उनके मुंह से निकलवाने की कोशिश करें। अगर वो निकलते हैं, दैट मेड योर डे, यू कैन स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम टुमारो। इफ नॉट, देन मॉडिफाई योर आइडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सर। प्लेजर। हेलो सर। सर मेंटर जो है, मेंटरशिप का चार्ज मतलब स्टार्टअप पे किस तरीके से लेते हैं? मतलब एक होता होगा ना, क्योंकि एज ए स्टार्टअप हमारे पास अभी कुछ होता नहीं है लगाने के लिए, तो आप एक किस तरीके से मतलब मेंटरशिप चार्ज देखो, करते हैं? रिलेशनशिप हमेशा पैसे पे हिंज नहीं होती है, राइट? इट हैज टू बी सीन होलिस्टिकली। जो ये मेंटर्स होते हैं ना, ये अगेन आजकल तो फैशन हो गया है, तो मैं उस साइड पे जाना नहीं चाहूंगा कि अगर आप लिंक्डइन पे जाएं तो सब लोग मेंटर हैं, ऐसे तो। बट जो एक्चुअल मेंटर होगा ना, वो आपके साथ पैशनली रिलेट होगा। इट्स लाइक आप शादी करने जाते हैं तो आप एक लड़की देखते हैं, तो लड़कियों की कमी नहीं है मार्केट में, आपको अपनी ऐसी लड़की चाहिए जो आपको पसंद हो, राइट? तो मेंटर के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरी है। मेंटर्स तो बहुत है मार्केट में, 100, 1000, लाख, बट आपको अपने उसके लिए सब्जेक्ट कंपनी के लिए कैसा मेंटर चाहिए। जब तक आप 10 लोगों से 20 लोगों से बात नहीं करेंगे, बात बनेगी नहीं, राइट? और हर उंगली बराबर नहीं होती है। बट यस, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई फ्री में आएगा, पर्सपेक्टिव है। लेकिन हर एक शादी की एक सीमा होती है और एक गरिमा होती है। खैर दोनों लड़कियों के नाम है, बट ठीक है, गुड फॉर यू। जी, ओके सर, थैंक यू सर। प्लेजर जी, प्लेजर। So there is मैम तनुश्री हाँ मैम, जी, my question is for हाँ you. जी अमित अमित। If it would be better for us to record this session, as it is very valuable for us, and we can share to our friends and family. Okay, you want the recordings of the sessions? Yes, ma'am. बिल्कुल हो रही है जी। वील ट्राई टू अरेंज दोज ऑल्सो। खुद तो सुनना चाहते, दिस इज सो गुड सर। देखिए इन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर लिया कि खुद तो मेंटरिंग का सेशन लगा ही रहे हैं, साथ में बाकियों को भी सुनाना नहीं मैम, चाहते हैं। दैट्स गुड। बात यह है कि जो आप बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड्स हैं वो। और ये मतलब कि और बात करके इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों से, मतलब कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो मतलब कि लग रहा है कि हाँ, ये शब्द सुन के दूसरों को भी बेनिफिशियल रहेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली अमित, नो प्रॉब्लम, हम अरेंज करवा देंगे। दैट्स वाई सर ने देखो पहले ही बता दिया था कि जो प्रेजेंटेशन मैं अभी दिखा रहा हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, सो दैट सभी को दे गेट दैट एसेंस की। एंड उसमें अगर कोई भी क्वेरी होती है, हम बार बार अपने सेशंस में बोलते हैं कि डू आस्क अस, वील बी कनेक्टिंग आवर मेंटर्स विथ यू, बिकॉज हमारे सेशंस में जो भी मेंटर्स आ रहे हैं दे आर ऑल ऑन बोर्डेड, एंड वो पूरी तरह से आप लोगों की हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, आपको गाइड करने के लिए दे आर रेडी। सो टेक दैट एडवांटेज। आप लोगों को ये एडवांटेज खुद लेना पड़ेगा।
हम सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, क्वेश्चंस आपकी तरफ से आने चाहिए. So there is ठीक है हमें, we will do it. यस मैम. Yes, we have a next question. A friend asked me to be a co-founder to his startup, but I am working on my own also, which will be live soon. So should I focus on my own or should I join his? His idea is also very nice. So he's very happy. You will have the same answer जो अभी भी आंसर गया है अरविंद को. आप एक समय पे एक ही बंदे से शादी कर सकते हैं, 2 बंदे से शादी कर सकते हैं. You have to be committed to one thing. Understand? मैं जॉब भी करता रहूं और मैं स्टार्टअप भी चला लूं, वो हो नहीं पाएगा दीपक. That is the problem. और वैसे Sorry Deepak. थैंक यू सर. समझ गया. बाकी सबके भी सेम है क्या? लो समझ नहीं आई बात आपकी. I didn't get it too. आपकी आवाज सॉरी बैकग्राउंड नॉइस थी. मैं कह रहा था समझ में आ गया सर. थैंक यू. इको आ रही है बहुत दीपक आपकी आवाज में. If you can write it down, will be really helpful to answer. वो बोल रहा है सर कि उसको समझ में आ गया. थैंक यू बोल रहे हो. अच्छा. Good. Okay. चलो, thank you. That's So, great. sir, somebody has a question. Wow, he's validating his idea with you at this session. So he's saying, sir, I have a question. I want a point of view related about bikes without handle. Means you don't need any handle to control. Okay. So how does it sound? He's asking. Crazy. That is the word. Crazy. But मैं नहीं बोलूंगा ये आइडिया खराब है. अंडरस्टैंड. हर एक रेडिकल आइडिया स्टार्टिंग में क्रेजी होता है ना. और क्रेजियों का बादशाह इलॉन मस्क है. राइट. सो यू नेवर नो सुभाष, आप भी हमारे हरियाणा के इलॉन मस्क बन पाए और हो पाए तो हम अपने आप को लकी समझेंगे कि आज आप हमारे सेशन में थे. तो हम भी दिखाएंगे कि सुभाष भी हमारे सेशन में आए थे. बट ट्राई टू मेक इट अ बिगर एंड अ लार्जर पर्सपेक्टिव. अगर हो सके तो, बन पाए तो, और लोगों को जरूरत हो तो इम्पोर्टेंट है. क्योंकि आपको अपने जो क्या बोलते हैं वो, कैसे एग्जांपल दूं, महाभारत तो सबने देखी होगी. जो अर्जुन का जो तीर होता है वो आंख में लगता है. तो आप अर्जुन का तीर चला रहे हो और आंख चाहिए कस्टमर की. कस्टमर हिलना नहीं चाहिए आपकी अपने तीर के निशाने से, हमेशा सामने होना चाहिए. सो विद दैट आई थिंक बेस्ट ऑफ लक सुभाष टू यू. और प्लीज बताइएगा अगर कुछ होता आगे तो हम भी वो बाइक चलाना चाहेंगे, ऑब्वियसली आफ्टर ट्रेनिंग. Yes. Very nice. Thank you so much. Miyar International has a question. Sir ji, I want to take my business on international front. Please guide. इंटरनेशनल फ्रंट, ये तो बहुत अच्छी बात है. He is a jewelry manufacturing. इनकी jewelry ये manufacture करते हैं. अगर शाहिद you are there, please unmute yourself and you can ask your question. आप किस regarding पूछ रहे हैं? Allow me to, ma'am, hello, I'm Smriti. Yes, Allow me to ma'am. speak. Yes, please. शाहिद के I think microphone में कुछ problem है. He even called me. So the question he wants to ask you, sir, is कि he's an artisan son. वो ज्वेलरी का काम कर रहा है. अभी उसके फादर भी करते हैं. 90% क्या होता है, इनसे कम प्रॉफिट पे खरीद के लोग ज्यादा पे बेचते आगे. So we've incubated him and we've taught him the art of selling. राधा अभी हम सिखा ही रहे हैं. उसकी लिस्टिंग भी होने वाली है मार्केट प्लेसेस पे. बट वो जानना चाहता है कि अगर वो एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल फ्रंट पे लेके जाए तो आप उस पे गाइड कर सकते हैं उसको. बिल्कुल. और आर्टिस्टिकली थीमेटिक हमारे एथनिक चीजों की डिमांड हमारे एनआरआई भाई बहनों को बहुत है. हमारे फ्रेंड्स इंडिया आते हैं तो वो मेरे ख्याल से मेरा एड्रेस यूज करते हैं डिलीवरी के लिए. So why not? See, the only challenge जो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में प्रॉब्लम आती है तो लॉजिस्टिक्स की आती है. कि मान लो जी मैं कहीं बैठा हूँ, लंदन बैठा हूँ या यूएस बैठा हूँ, मैंने ऑर्डर कर दिया, देख के प्राइस भी अच्छा है, लेकिन प्राइस और डिलीवरी का जो कॉस्ट है वो बड़ा मैटर करता है यहाँ पे. राइट. तो कुछ स्टार्टअप अभी आई है पीछे जो हेल्प करती हैं सर्टेन कंट्रीज से, नॉट ऑल दी कंट्रीज बट सर्टेन कंट्रीज, ताकि आपकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो जाए. कई बार क्या होता है ना कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होती है, मान लीजिए प्रोडक्ट है 500 रुपए का, आपको डिलीवरी चार्ज लगता है 2500 रुपए, बात खत्म. तो वो मजा नहीं आएगा फिर.
राइट. सो चैलेंजेस होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं, बट आई रियली अप्रिशिएट, आई लाइक हिज आइडिया, द बैकग्राउंड ही इज कमिंग फ्रॉम एंड द direction that you are guiding him to move to. Really appreciate. Thank you, sir. Pleasure, pleasure. So Krishan has a question. I have an idea of startup and in market somebody is already doing it, working on it, but he's facing an issue in getting customers and satisfying them. I talked to him, he asked me to join to improve that, but currently I also don't have solution for the same. But he told me that we will find solution together, but he is in this field since last 5 to 6 years. So should I join him or I do more research and I do something else? Please guide. कृष्ण, इसमें ना दो एस्पेक्ट हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल, राइट. जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सब के दो रूप होते हैं, एक पर्सनल साइड होता है, एक प्रोफेशनल साइड होता है. तो मुझे नहीं पता कि आपका इसका बैकग्राउंड क्या है, कि आप उसको सिर्फ प्रोफेशनली जानते हैं या पर्सनली जानते हैं. किसी को भी टीम में शामिल करना या मिला लेना या सलाह लेना बहुत अलग बातें हैं. अगर आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो ये बहुत लॉन्ग टर्म है. आपको ढंग से सोच समझ के उसका पर्सनल बैकग्राउंड, पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल स्ट्रेंथ समझ के सोच के जाना चाहिए, ना कि सिर्फ कि आप दोनों भाई लोग एक ही प्रोफेशन में हैं या एक ही बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हाथ नहीं मिलाना चाहिए. आगे जाकर के बहुत 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 प्रॉब्लम होती है और दुख बहुत होता है, क्योंकि आप दोनों की चाहत तो एक ही है, एक ही रोड है, एक ही मंजिल है, बट साथ चल के भी अगर अलग हो जाओगे तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है आने वाले टाइम में. तो प्लीज इसको इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप इसको नापेंगे, तोलेंगे इस रिलेशनशिप को. किशन, मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा सबके लिए, कि हमारे बाप दादा जो दे गए थे हमें धरोहर बिजनेस की, वहां बोलते थे कि बिजनेस इज कैश टू कैश, कि आप धंधे में पैसा डालो और आपको आगे से पैसा निकल के मिलेगा. तो इट्स अ प्रोसेस, आप पैसा डालिए और पैसा मिलेगा. आज के जमाने में इस बिजनेस साइकिल को हमने चेंज कर दिया है, अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो गए. अब हम क्या बोलते हैं, कैश टू कैश नहीं बोलते हैं, अब हम बोलते हैं रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप. आप रिलेशनशिप बनाते हैं, राइट, और आप रिलेशनशिप में बन जाते हैं, राइट. तो ना आपके पार्टनर्स, ना आपके एम्प्लॉइज, ना आपके वेंडर्स, बट कि आपके क्लाइंट भी आपके रिलेशनशिप में जुड़ जाते हैं, तो एक धागा बन जाता है मजबूत. सो पीपल आर लिविंग टुडे इन दैट नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, राइट. सो हम इतनी नेटवर्किंग की बातें करते हैं, इट इज नथिंग बट creating a chain of relationship. So see every partnership as a relationship, and everybody of us are into a business of relationship only, if you see holistically. Okay, sir. Thank you, sir. Krishan, yeah, thank you. Okay. So, sir, I'll take a last question. Lavish is asking, so I know that I want to work in a waste recycling industry, and there's a startup already working on that. Uska naam hai Karo Sambhav. So it's doing in the pan India level. So how can I approach them to get trained and learn from them about the industry with them and start my own business? रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री या वेस्ट साइकिलिंग या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री काफी आ रही है आने वाले टाइम में, बिकॉज जिस तरह से ह्यूमैनिटी रिसोर्सेज को यूज करती है या कंज्यूम करती है, ये बहुत दिशा में बढ़ चुके हैं हम लोग, कि जहां फॉर एग्जांपल प्लास्टिक इतना यूज करते हैं या सॉलिड वेस्ट इतना निकालते हैं. तो हमें भी अपनी सृष्टि के प्रति या अपने क्लाइमेट के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. A lot of investors, a lot of incubators, a lot of ministries are coming to help and support these specific kinds of startups, जो कि यहाँ पर आके सोचें और यहाँ पे आकर के कुछ काम कर सकें. So I really appreciate and welcome your thought and focus into this area. और भी कोई friends अगर इस area में जो कि depleting resources की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, right, कि हम as a human जो भी resources से use कर रहे हैं, उसके कारण किसी को प्रॉब्लम होती है इन दिस इकोसिस्टम, बिकॉज ऑफ आवर सोशल रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द इकोसिस्टम, बिकॉज हम वहीं से लेते हैं और वहीं कंज्यूम करते हैं. तो रियली अप्रिशिएट दैट दे शुड कम फॉरवर्ड एंड क्रिएट समथिंग डिफरेंट. मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसका. राजस्थान के बहुत ही बाहर छोटा सा टाउन है, वहाँ पर दो गर्ल्स हैं, वी आर मेंटरिंग देम. वो लाइव फीड से, मतलब कि आपकी पेड़ों के खाल से और उससे लिथियम आयन बैटरी बना रही है. Can you think it?
They have already created a beta product under the ministry's roadmap, and we are helping them to devise best of best materials, efficiencies, testing platforms, और उनकी लाइफ भी सिमिलर बेंचमार्क्ड है. जितनी इसकी लाइफ है उतनी उनकी लाइफ है 7 years, और रिचार्जेबिलिटी भी अच्छी है. बट अब उसका हम फाइन ट्यून कर रहे हैं. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट हाउ people can evolve from something or the other and go to the other side. Second, एक मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो हम टेस्ट कराते हैं आजकल, जितने भी टेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के, हमारे को एक स्टैंडर्ड टेस्ट रिजल्ट आ जाता है. मोस्ट ऑफ अस डू नॉट अंडरस्टैंड, डू नॉट आर नॉट अवेयर ऑफ द रिजल्ट्स कि वो क्या कहना चाहते हैं और मतलब क्या है उसका. तो उसने बहुत ही छोटी प्रॉब्लम को पकड़ के उसकी एनालिसिस रिपोर्ट बना दी है, और हमारे मेंटरिंग से उसने क्या किया, उसको मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज बना दिया. क्योंकि इंडियंस ही मतलब पढ़ेंगे ना इंग्लिश में, भारतीय क्या करेंगे, वर्नाकुलर लैंग्वेज पढ़ेंगे वो. सो उसने ऑलरेडी 7 भाषाओं में कन्वर्ट कर दिया, और वो एक डैशबोर्ड बना रहे हैं इंटरप्रेट, और सारे लैब के साथ वो ऐड ऑन हो रही है SaaS प्रोडक्ट. अगेन दिस एग्जांपल इज टू हेल्प यू आउट इन असेसिंग द राइट आइडिया एंड नीड. तो आपके इर्द गिर्द में ही हैं चीजें जो आपको देखनी है, समझनी है, और उसको डिफरेंटली इम्प्लीमेंट करना है. यस, आपको शक्ति लेनी है अपने बैकग्राउंड से. आपका किस टाइप का बैकग्राउंड है, पेरेंट्स क्या करते हैं, फ्रेंड्स क्या करते हैं, आपकी क्या क्षमता है, और उस हिसाब से सोच समझ के अपने आइडियाज के अराउंड काम करना है, और फिर उसकी टीम बनानी है. एंड वी आर रियली ग्रेटफुल एंड हेल्पफुल इन बिल्डिंग दोज फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आइडियाज अलोंग विद यू. एंड दिस वाज लवली. आई मीन, आई वाज not expecting such great businesses running ideas here. I mean, thanks for having me here, Shilpa ji and Tanu. Thank you so much, sir. And really, it was really Just one last question. Yes, Just one last question. Lavish, please. Actually, the MIT and the famous MIT, they created a ventilator machine that was basically on do-it-yourself basis. So can we like create a business on selling those low-cost ventilator machines? देखो, 2 चीजें हैं. अगर तो आप सिंपल सेलिंग की बात करते हो कि प्रोडक्ट की, राइट, सो आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, बुराई नहीं है. देन यू आर नॉट डूइंग ए स्टार्टअप. अंडरस्टैंड, टू क्वालिफाई एज ए स्टार्टअप यू हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली. बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप दूसरा बिजनेस करेंगे उसमें पैसा नहीं है, ग्रोथ नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है. बिल्कुल है, राइट. तो आप वो काम भी कर सकते हैं. बट अगेन आपको ये समझना पड़ेगा, कल को कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया या उन्होंने पीछे सप्लाई बंद कर दी, तो आप क्या करेंगे? बिकॉज यू आर सोलली डिपेंडेंट अपॉन ओनली वन सप्लायर. अंडरस्टूड सर, समझ गया. इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई छोटा सा. जो लोग दिल्ली में लोग आते होंगे उनको शायद पता होगा कीर्तिनगर के बारे में. कीर्तिनगर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ की हम वुडन हब बोलते हैं, जिसको लकड़ी का एक सूत्र बोलते हैं, जहाँ पर फर्नीचर मार्केट बोलते हैं. वहाँ पर आपको छोटे छोटे वेंडर्स मिलेंगे और 5 स्टार शॉप भी मिलेंगी, सब कुछ है वहाँ पर. वहाँ पर मुझे किसी एक एंटरप्रेन्योर ने याद किया, हम गए मिलने के लिए उसको. अच्छा बंदा था, मतलब वो फ्रेश पढ़ा लिखा कहीं से अच्छे कॉलेज से था, बाहर से पढ़ के आया था. पिताजी का बिजनेस था वहाँ पर. तो वो हम मेरे से पूछने लगा, कहते कि आप हमें हेल्प कैसे कर सकते हैं. मैंने पहले आपकी क्या सोचे, पहले आप बताइए. कहते मेरे पिताजी का बिजनेस है, 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ. मैंने क्या सोचा है करने के लिए? आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आज के हो. वो बोलता है कि भाई मैं ना कुछ एक प्लेटफॉर्म बना दूंगा जहाँ पर मैं इंपोर्ट करके लाया करूंगा चीजें और यहाँ बेचा करूंगा. मैंने देखो, आप करोगे तो ट्रेडिंग काम करोगे जो आपके साथ चला जाएगा, बट कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जो आपकी आगे वाली जनरेशन भी खाए और आपको याद करें. मैंने उसको एग्जांपल दिया. मैंने आप फर्नीचर मार्केट में बैठे हो इंडिया की, और आपने एक कुर्सी जो ऑर्डर की ना, उसने कुर्सी ऑर्डर करी 1.25 लाख रुपए की, ह्यूमन स्केल की. ह्यूमन स्केल का IPR प्रोप्राइटरी राइट है US का. मैं यही कुर्सी हमारे भाई लोग, साथी लोग बनाते हैं यहाँ. लकड़ी ठोक के चले जाएंगे, रात को सो जाएंगे. कभी ये नहीं सोचेंगे कि क्या मैं इसको कोई प्रोडक्ट बना लूं, कोई IP बना लूं, ताकि मेरे आने वाली पुश्तें भी खाएं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि बीइंग इन इंडियन हमारे यहाँ के IP फाइलिंग इतने कम क्यों होते हैं, क्योंकि हम इतने लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं है.
और अब फर्नीचर मार्केट है बैठ के यूएस की आईपी मशीन वो कुर्सी यूज कर रहे हैं। मैं कहा इससे बड़ी शर्म की बात तो होनी नहीं चाहिए। थोड़ा सोचो कि हाउ यू कैन बी डिफरेंट एंड हाउ यू कैन क्रिएट डिफरेंट फॉर इंडिया, वो जरूरत है। और हम सब में बहुत क्षमता है और बहुत रिसोर्सेज है हमारे इनके, लंबी सोच की आवश्यकता है, सब पॉसिबल है। So I think so. Thank you so much. We have already taken so much of your time, but this was really Hello. good. Yes. Shahid. हेलो Okay. हाँ जी शाहिद, आप पूछ रहे थे कोई क्वेश्चन? मैम, एक क्वेश्चन यही था उसके बारे में, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में सर से कुछ। ओके, मैम ने वो आपकी तरफ से पूछ लिया था। हाँ मैम, एक क्वेश्चन और था। हाँ पूछो नो प्रॉब्लम, प्लीज पूछो। सर अभी ये कह रहे थे ना कि जो इंटरनेशनल बिजनेस लिए करना था कि जो फॉरेन से करेंसी आएगी ना वो इंडिया के लिए बेस्ट रहेगी, तो मैं इसलिए तो सर भूल गया। हाँ जी, शाहिद। Okay, Smriti ma'am. Yeah, Shahid. I think what he's trying to say is कि जो बाहर से पैसा आएगा ज़्यादा आएगा तो we can invest more in our artisans. हाँ Shahid? What I'll do is I'll take his question and probably connect with sir later. Yes, offline. क्योंकि I think उसमें some problem है. Yeah. Thank you, sir. So I think आज का जो session मतलब it was so good and the students have actually enjoyed talking to you क्योंकि आपने इतने simple way में, इतने interesting way में उनको चीजों को समझाया जो हम बहुत complicated चीजें होती हैं। So it's really मतलब वो you know the feedbacks are also coming the same way. So मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। I'm really glad and thankful कि आपने time निकाला and you have taken out time for our startups and for our participants and for giving them such valuable knowledge. Thank you so much from the whole side. Thanks to you and Shilpa also, and I propose Shilpa कि वो quarter में एक ऐसा session रखे जहाँ हमारे सारे expert teams and people जो भी अपने दिखते हैं क्वेश्चन है वो ask me anything session करें हम quarterly एक बारी, उसको एक thematic बना लेंगे so that चलता रहेगा आने वाले टाइम में। We'll definitely, so Shilpa ma'am was telling me this and we'll definitely do this. हम लोग सब incubators से जैसे आज ही students are only asking कि questions हैं उनके mind में, so we can arrange one more session, a class or session, direct 1-to-1 with the startups and they can ask questions with you and they can get real time answers. Thank you so much. Thank you. So we